آپ سب کی تعلیم خدا کے خادم کو سامنے دعوت دیں گے۔ Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! انجیل مقدس کی تلاوت کریں گے۔ متی کی انجیل 13 باب اس کی 51 سے لے کے 58 تک پڑھیں گے۔ متی کی انجیل 13 باب کیا تم یہ سب باتیں سمجھ گئے؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں۔ اس نے ان سے کہا اس لیے ہر فقیہ جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا ہے اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانہ میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ آمین آمین۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جناب سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ بیٹھ جائیں۔ ہم یسوع مسیح کے بابرکت اور خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سنڈے کو ہم صرف اور صرف پیدائش کی کتاب سے سیکھ رہے ہیں، اور بدھ کو میری کوشش ہوتی کہ ہم انجیل میں سے یا نئے اعداد میں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ آج ہم جو بات سیکھنے لگے ہیں بڑی خوبصورت ہے، دھیان سے اس کو سنیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں 51 آیت کو تو لکھا ہے کیا تم یہ سب باتیں سمجھ گئے؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں۔ شاگردوں نے بڑی وفاداری کے ساتھ جواب دیا جی ہاں۔ خدا یسوع مسیح اس سے پہلے تمثیلیں سکھا رہا تھا، ان کو تمثیلوں میں کلام کر رہا تھا، اس لیے خدا یسوع مسیح اس سے پوچھتا ہے کہ جو کچھ میں نے تمثیلوں میں تم لوگوں سے بات کی ہے، جو کچھ میں نے تمہیں سکھایا ہے، کیا تم نے اس کو سیکھ لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں سیکھ لیا ہم نے۔ شاید آج ہمارے لیے یہ فکر کی بات ہے کہ اگر میں سوال کروں کہ کیا جو کلام میں آپ کو سکھا رہا ہوں کیا آپ وہ سیکھ گئے ہیں، تو شاید جواب ہاں میں کام بھی ملے گا۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ شاگرد خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہتے تھے، اور جب ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی وہ اس سے پوچھتے تھے کہ خداوند اس تمثیل کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو ہمیں دوبارہ سے بتا۔ تو خداوند یسوع مسیح دوبارہ سے ان کو سکھاتا تھا، وہ سیکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم بھی سیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم سے بھی اگر کوئی سوال کیا جائے کیا آپ بائبل مقدس کو سیکھ رہے ہیں، تو آپ کا جواب بھی یہی ہونا چاہیے جی ہاں میں سیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں، میں جانتی ہوں، بائبل مقدس کی سچائیوں سے میں واقف ہوں۔ آج ہمارا جواب بھی یہی ہونا چاہیے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب کوئی بھی ہم سے پوچھے تو ہمارا جواب بھی اعتماد کے ساتھ ہمیں کہنے کی ضرورت ہے جی ہاں۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ جی 51 پڑھیں ذرا، 52۔ اس نے ان سے کہا اس لیے ہر فقیہ جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا ہے اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانہ میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ پرانی اور نئی چیزیں نکال دیتا ہے۔ اب شاگردوں نے یہ ساری باتیں سیکھ لی، اب شاگردوں کا فرض تھا کہ وہ اس کلام کی باتوں کو آگے پہنچانا شروع کریں۔ ویسے ہی جیسے میں اکثر آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب آپ کلام کو سنتے ہیں تو اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں، نہ کہ ہم
बैठ जाएं कि हमें पता चल गया, अब हमें किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत है कि हम इस बरकत के कलाम को आगे से आगे पहुंचाते जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसको सीख सके। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों से पूछा था, क्या तुमने ये सारी बातें सीख ली हैं, समझ ली हैं, ताकि तुम आगे बता सको। अब हमारा भी फर्ज है कि जब हम कलाम को सुनते हैं तो इस तरीके से सुने, इसको सीखे, ताकि आप भी जाके आगे इसको फैला सके, किसी और को भी बता सके। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप खुदा यीशु मसीह के कलाम को ज्यादा से ज्यादा सीखना शुरू करें, ना कि हम आखिरी दीवार बन जाए, आखिरी बन जाए जहां पे पानी रुक जाता है, या गली अगर चलती हो तो आगे दीवार आ जाए तो वहां पे जाके क्या होती है, बंद हो जाती है। कई बार हम जब कलाम सीख लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें ये पता चल गया, अब हमें आगे बताने की जरूरत नहीं है, हम आखिरी बंद बन जाते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे आकर रुक जाना चाहिए ताकि मेरे पास ज्यादा नॉलेज हो और मैं लोगों को कह सकूं मेरे पास ज्यादा है। इसलिए जरूरत है कि जब हम सीखते हैं तो हमें आगे भी फैलाने की जरूरत है, आगे फैलाने की कोशिश किया करें। जी आगे। जब यीशु ये तमसीलें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से रवाना हो गया और अपने वतन में आकर वो अपने वतन में आता है, नासरत में, और ये आखिरी बार है जब खुदावंद यीशु मसीह नासरत में आता है। इसके बाद वो वहां पे वापस नहीं आता। एंड तक हमें कहीं नजर नहीं आता कि खुदावंद यीशु मसीह दोबारा नासरत में आया हो। इसलिए वो अपने वतन में क्या करता है, आता है। और उसकी वजह क्या थी कि वो वापस क्यों नहीं आया, अपने वतन में क्यों नहीं आया, उसने आके वहां पे तालीम क्यों नहीं दी? आए जरा देखते हैं। जी पढ़े। और अपने वतन में आकर उनके इबादत खाना में उनको ऐसी तालीम देने लगा कि वो हैरान होकर कहने लगे कि इसमें ये हिकमत और मौजज़े कहां से आए। अब वो कहने लगे कि ये हिकमत, ये मौजज़े, ये कहां से इसके अंदर आ गए, क्योंकि वो तो जानते थे कि ये लड़का यहीं का है, ये नासरत शहर में रहता था, ये तो हमारे साथ बड़ा पला है, ये कैसे ये सारे मौजज़ात करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ये ना मुमकिन सी है। हाँ जी पढ़े जरा। क्या ये बुराई का बेटा नहीं? क्या ये बुराई का बेटा नहीं? फिर वही बातें वो कहते, क्या ये बुराई का बेटा नहीं है? इसलिए वो उस पर यकीन नहीं करते, उस पर ईमान नहीं लाते, उसको क्या कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। यही वजह थी कि खुदावंद यीशु मसीह दोबारा नासरत की तरफ रुख नहीं करता। वो दोबारा नासरत जाता ही नहीं है, जहां वो पैदा हुआ, जहां वो सारी उम्र वहां पे रहा, लेकिन उसके बाद उसने वहां से जाने का इरादा किया। और ये आखिरी बात थी कि जब खुदावंद यीशु मसीह नासरत में हमें नजर आता है। और लोगों ने कहा कि क्या ये बुराई का बेटा नहीं है? हाँ जी। और इसकी माँ का नाम क्या मरियम? इसकी माँ का नाम मरियम नहीं है? और इसके भाई यकूब? क्या इसके भाई याकूब, यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं है? वो उसके भाइयों को भी जानते थे, वो उसकी माँ को भी जानते थे, वो उसके बाप को भी जानते थे। इसलिए वो क्या करते हैं, उसको रद्द कर देते हैं, वो मजबूर कर देते हैं कि दोबारा खुदावंद यीशु मसीह वहां पे ना आए। हाँ जी आगे। और क्या इसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? अब उसकी बहनों का भी जिक्र करते हैं, वो पूरी फैमिली को जानते हैं। जैसे यहाँ पे जो लोग बसते हैं वो सब एक दूसरे को क्या करते हैं, जानते हैं, हर चीज को जानते हैं, भाइयों को जानते हैं, बहनों को जानते हैं, बच्चों को जानते हैं, माँ बाप को जानते हैं। कई बार कोई हमें हमारे साथ बात कर रहा हो तो कहते हैं ये फलां को जानते हैं, हम कहते हैं उसके बाप का नाम लो, या उसकी माँ का नाम लो, या उसके भाई किसी का नाम लो। इस तरह हम पता करने की कोशिश करते कि ये किसके बारे में बात करें। इसलिए वो वहां पे दावा करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ये वही नहीं है जो बुराई का बेटा है, जिसके भाइयों का ये नाम है, जिसकी बहनें हमारे घरों में है, वो ये सारी बातें कहते हैं। इसलिए कैसे हम यकीन कर लें, ये बड़े बड़े मौजज़े करना शुरू हो गया है, ये तो हमारे दरमियान से उठ के गया है, ये कैसे इतना बड़ा नबी बन गया है। खुदावंद यीशु मसीह को क्या करते हैं, रद्द कर देते हैं। आगे। फिर ये सब कुछ इसमें कहां से आया? हाँ जी। और उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। उन्होंने उसके सबब से क्या की, ठोकर खाई। ईमान नहीं लेके आए बल्कि ठोकर खाते हैं और दिल में सोचते हैं ये हो ही नहीं सकता, ये
कैसे कर सकता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह, पढ़े जरा थोड़ा सा आगे। मगर यीशु ने उनसे कहा कि नबी अपने वतन और अपने इसलिए घर के सिवा खुदावंद यीशु मसीह वहां पे कहते हैं कि नबी अपने वतन में, और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। कहीं और बेइज्जत नहीं होता। ये बात इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहता है क्योंकि वो उसका यकीन नहीं कर रहे थे, उसके मौजों को नहीं तस्लीम कर रहे थे। वो कहते हैं इसमें कैसे ये सारी हिकमत आ गई, कैसे ये मौजूद करना शुरू हो गए, वो बल्कि उसकी मुखालफत करते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहता है, इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही कि नबी अपने वतन में कभी इज्जत नहीं पाता। जी आगे। और उसने उनकी बेइत्कादी के सबब से वहां बहुत से मौजज़े ना उनकी दिखाए। बेइत्कादी के सबब से, यानी कि वो ईमान नहीं लेके आ रहे थे, इसलिए उसने बहुत ज्यादा मौजज़े वहां पे ना किए। उसने अपने इलाके में जाके इतना बड़ा काम ना किया, इतने मौजज़े ना किए, क्योंकि वहां के लोग उस पर इत्मीनान नहीं कर रहे थे, मान नहीं ला रहे थे। इसलिए वो चंद बीमारों को अच्छा करता है। बस पढ़े जरा। वो सिर्फ चंद बीमारों को क्या कर देता है, अच्छा कर देता है, सबको अच्छा नहीं करता। वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े मौजूद नहीं करता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। आए जरा पढ़ लेते हैं कि उसने कितने के मौजे वहां पे किए नासरत में। मरकस की अंजील 6 बाब उसकी 5 आयत को पढ़ लें। और वो कोई मुआजिजा वहां ना दिखा सका। वो कोई मौजा वहां पे ना दिखा सका, बल्कि क्या किया, पढ़े थोड़ा सा। सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा थोड़े कर से दिया। बीमारों पर हाथ रख के उनको क्या कर दिया, अच्छा कर दिया। और उसके बाद वो नासरत से चला जाता है। आज जरूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को जाने, खुदावंद यीशु मसीह को देखे कि वो कितना बड़ा खुदा है, वो खुदावंदों का खुदावंद है। उससे बड़ा कोई नबी यहाँ पे नहीं आया दुनिया में। जब से दुनिया वजूद में आई, उससे बढ़कर किसी ने काम भी नहीं किया। उसने बड़े बड़े मौजूद किए, बड़े अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को अच्छा किया, गूंगों को अच्छा किया, अंधों की आंखों को खोल दिया, और यहाँ तक के मुर्दे भी जिंदा किए। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह का काम है। लेकिन वो अपने ही इलाके में जाना और पहचाना नहीं जाता, बल्कि वहां पे रद्द कर दिया जाता है। लेकिन बेईमानी, बेइत्कादी भी मौजूदात को कभी रोक नहीं सकती। खुदा की मर्जी हो तो लोग बेईमानों में भी खुदा क्या करता है, मौजूदात कर देता। वहां पर भी काम करता है जो उससे मांगते नहीं है, जो चाहते नहीं है कि हमारे घर में मौजा हो, लेकिन फिर भी खुदा वहां पे भी मौजूदात करता है। और फिर ऐसे लोग भी जिनको कहा जाए तुम बीमार हो, तुम पर दरू गिरफ्ता हो, तुम्हें ये मसला है, लेकिन वो कहते हैं हम तो खुद बड़ी दुआ करते हैं। वो यकीन नहीं करते, लेकिन खुदा वहां पर भी काम करने की ताकत रखता है। खुदा उनमें भी काम करता है, उनको भी अच्छा कर देता है, ताकि हर बशर जो है वो उसके मौजूदात को रिसीव कर सके। आज जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों में उसको तस्लीम करें, उस पर ईमान लेके आए, और जो कलाम सुनते हैं उस पर अमल करें, और दूसरों को भी वो सिखाने की कोशिश करें, जैसे कि आखिरी बंद ना बने। जब सीख लेते हैं तो कोशिश करें कि आगे जाके लोगों को वो कलाम सुनाएं, ताकि ये कलाम का काम जो है ज्यादा से ज्यादा हो सके। आइए खुदावंद इस कलाम के वसीला से खुदा